Om Shanti. Good morning. हम सब जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, everyone is from a nursing school, right? So everyone's getting ready to become a healer. Yes? Yes? Everyone? In how many years' time? 4 years. So we're so lucky. We have 4 years right now to become what we want to be. You know? So do one thing. Just close your eyes. Don't look here and there at anybody. Close your eyes. Sit back comfortable. And just look at yourself. In 4 years from now, I'm going to be having the responsibility of healing people. People will come to me in pain. And I will heal them and relieve them from all the pain. Look at yourself doing that, healing people. लोग दुख में आएंगे, दर्द में आएंगे, परेशान होंगे. And I am healing them. Visualize yourself healing them. See yourself. चेहरा कैसा होगा? हमारा बात करने का तरीका कैसा होगा? मेरा व्यवहार कैसा होगा? वो परेशान भी होंगे, वो गुस्से में भी होंगे. मेरा बात करने का तरीका कैसा होगा? A healer जो लोगों के दुख मिटाकर उनको खुशी और सुख देता है. It is my fortune that I am going to be healing people in pain. Om Shanti. देखा अपने आप को? How many were able to see themselves? Visualize. Can you see yourself? Yes? How many were able to see themselves? Okay. Now you share. What did you see? कैसा देखा अपने आप को? क्या देखा? कोई दर्द में आया, कोई परेशान आया, कोई बीमार आया, दुखी आया, and you're healing. Now healing doesn't mean only what you're giving as a medicine, what you're injecting, but you're healing. So कैसे देखा अपने आप को? How were you? कैसा देखा? You can all come and sit. You stand for one. कैसा देखा अपने आप को? Anybody? I don't give lectures, huh? You have to talk. कैसा देखा अपने आप को? Don't need to stand also, just sit and talk. कैसा देखा अपने आप को? We see ourselves at the reception. If someone is getting admitted with any complaint, the relatives are there with so much of worry, confusion. They don't know where to go, where to report. So how did you see yourself? We see ourselves as being We stable. nahi, I. I see myself as being Because it's not necessary, everyone will not be the same. So how do you see yourself? I see myself as being stable, Huh? not getting worrying along with them. Very good. So they were worried, and how were you? I was stable. You were stable. Beautiful. And So
if I'm stable, then only I'm able to recognize the problems, where the problem is, right, what their needs are, and then slowly, one by one, according to the priority, in setting them in, I'm solving their problems. Very good. Finally, all their problems got solved, no? Very good. What else? How did anybody else see themselves? कैसा देखा अपने आप को? विजुअलाइज किया, आंख बंद किए, सोया तो कोई नहीं था? गुड. क्योंकि कई बार अगर नींद की कमी होती है तो सो भी जाते हैं 1 मिनट में. तो फिर कैसा देखा अपने आप को? I felt as if I am treating someone of my own person. I am treating someone who belongs to me. और किस किस ने अपने आप को देखा इरिटेट होते हुए? देखा ऐसे अपने आप को? क्या है, कैसे लोग आ गए मेरे सामने, कैसे बात करते हैं, कितने इरिटेटिंग है, ऐसा देखा अपने आप को? नहीं देखा. तो कैसा देखा फिर अपने आप को? चेहरा कैसा था आपका? चेहरा कैसा था अपना? स्माइलिंग. किस किस ने अपना चेहरा स्माइलिंग देखा एकदम? अच्छा, जब आप स्माइल कर रहे थे तो ऊपर से सिर्फ स्माइल कर रहे थे या अंदर से भी मन शांत था? अंदर से भी मन शांत था. क्योंकि ऊपर से स्माइल तो बहुत लोग कर सकते हैं, है ना? आज एयर होस्टेस है, होटल में जाओ, सब लोग ऊपर से स्माइल करते हैं. अंदर से चाहे कितना भी गुस्सा कर रहे हो आपको, तो वो वाला नहीं कर रहे हम. तो हम अंदर से भी स्माइल कर रहे थे. किस किस ने अपने आप को देखा प्यार से मीठी मीठी बात करते हुए? और आपको लगता है कि ये चेहरा स्माइलिंग, मन शांत, प्यार से हमारा उनके साथ बात करना, क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा उन पर? दवाई तो वही खिलानी है जो खिलानी है, इंजेक्शन तो वही लगाना है जो लगाना है, करना तो वही है जो करना है, लेकिन एक है प्यार से, केयर से, with a very a vibration that I really care for you and I want you to get healed very soon. And one is, ये मेरा काम है, ये दवाई खाओ, काम पूरा करो मेरा. दो तरह के ना, दोनों तरीकों में दवाई तो वो खा लेगा सामने वाला, लेकिन एक में है what is the vibration I give them. So either I can give them very pure, loving, caring, powerful energy, or I can give them energy of being irritated, and if they ask me too many questions then I get even angry with them and I say बार बार वही बात पूछते हैं, इनको अभी तक समझ में भी नहीं आया. Which kind of a nurse do I want to be? First, पक्का? अब आज हमें डिसाइड करना है, और इस 4 साल के अंदर हमें अपनी पर्सनालिटी को वैसा बना लेना है, क्योंकि वो कॉलेज नहीं बनाएगा, वो कॉलेज नहीं बनाएगा, वो हमें पढ़ाएंगे. लेकिन हमें अपनी पर्सनालिटी को कैसा बनाना है, वो हमें बुक्स में, वो हमें टीचर बता सकता है. यू शुड बी स्माइलिंग, यू शुड टॉक नाइसली, यू शुड बी विद लविंग, यू शुड बी केयरिंग, वो सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन बनाएगा कौन हमें वैसा? कौन हमें बनाएगा वैसा? हमें बनाना है. एंड 4 years is good enough time. So can we take up that as a project to become that in 4 years? So that पेशेंट से हम मिलेंगे, दवाई तो उस पर बाद में असर करेगी, लेकिन हमारी वाइब्रेशन से ही उसका आधा दर्द खत्म हो जाएगा. आप सबको भी अलग अलग डॉक्टर्स और नर्सेज मिलते हैं ना, आपको फर्क दिखाई देता है? ये 4 साल चूज करो लोगों को देखने में और ऑब्जर्व करने में कि किसका हम पर क्या असर पड़ता है, और मुझे कैसा बनना है जो मेरा असर दूसरों पर कैसा पड़ना चाहिए. कुछ लोगों से हम मिलते हैं, डॉक्टर्स से भी, नर्सेज से भी, जिनसे मिलके हमें मजा नहीं आता, है ना? ऐसा होता है ना, ऐसा लगता है नहीं मिलते तो बेटर ही होता. कैसे बात करते हैं, दवाई भले सही दी है, और कुछ नर्स होंगी, डॉक्टर होगी कि हम पूरा दिन वेट करेंगे कि वो आएगी ना, आज तो बहुत प्यार से बात करते हैं. तो हमें कौन सी वाली बनना है? पक्का है? अब वो बनेंगे कैसे हम? हाँ, वो बनेंगे कैसे हम? आप में से किस किस को गुस्सा आता है? हाँ, तो फिर बनेंगे कैसे हम? अभी तो हम अपने जीवन के मोस्ट इजी लाइफ में चल रहे हैं, फेज में.
अभी तो हम वो वाले फेज में भी नहीं गए जहाँ इतना प्रेशर है, टारगेट है, इतना टाइम है, घर भी संभालना है, हॉस्पिटल भी जाना है, काम भी करना है। अभी तो कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर। अभी तो हमें सिर्फ क्या करना है, बस पढ़ना है, खत्म। पढ़ना है और एग्जाम देना है, एक ही काम करना है हमको। जब कोई प्रेशर नहीं है तब हमें गुस्सा आता है। तो फिर अभी 1 मिनट विजुअलाइज करो वापस क्या होगा 4 साल बाद। Wanting to be like that, I will have to start working on myself now. Because a healer, the profession that you are choosing, is a very high risk profession. आपको पता है एक हीलर सारा दिन इन्फेक्शन के साथ खेलता है, राइट? तो अगर उसने अपने आप को नहीं बचाया तो शाम तक वो कोई ना कोई बीमारी अपने घर ले आएगा। इसी तरह एक हीलर सारा दिन दर्द के साथ खेलता है। आपने ऐसा प्रोफेशन चूज किया है कि आपको पूरे जीवन में सिर्फ दुखी लोग मिलने वाले हैं। खुश खुश थोड़ी आता है कोई हॉस्पिटल, है ना? खुश खुश थोड़ी कोई आता है हॉस्पिटल। दुखी आएगा, दुखी आएगा, परेशान आएगा, चिंता में आएगा। उसको बीमारी की चिंता, मन का दुख, उसका धन जाने वाला है उसकी चिंता, उसको बहुत सारी चिंता है। तो इसका मतलब यू हैव चोजन अ प्रोफेशन वेयर इन योर होल लाइफ यू आर गोइंग टू मीट अनहैप्पी पीपल। अभी भी सोच लो, क्योंकि इट्स अ वेरी रिस्की प्रोफेशन। इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, then very soon after few years we will become unhappy people, because we are getting vibrations of pain and pain and pain and pain, plus the pressures of the profession कि कभी नाइट ड्यूटी है, कभी दिन है, कभी क्राइसिस है, कभी हमारे से कोई गलती हो गई। एंड फिर आजकल डॉक्टर्स भी बहुत गुस्सा करते हैं तो वो भी हमें डांट सकते हैं। कई डॉक्टर्स तो ऑपरेशन करते करते बीच में भी डांट देते हैं, तो फिर हम उनकी अलग कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि वो अपने नर्सेस को ना डांटा करें। बट वी आर गोइंग टू बी इन ऑल दैट। सो टुडे 4 years before I have to tell myself this is all that I have chosen for myself, and how am I going to prepare myself so that I will protect myself from all the pain that's around me. And when I protect myself and I am stable and happy, then I will be giving that happy energy to people who meet me. There's always going to be an energy exchange. Either we will get the unhappy energy of people or they will get our happy energy, depending on who is more powerful. लेकिन अगर हम ही ज्यादातर कभी इरिटेट भी हो जाते हैं, कभी गुस्सा भी कर देते हैं, तो फिर उस प्रेशर के अंदर हमारा गुस्सा करने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो अब से लेके 4 साल के लिए हमें पहले गुस्सा करना बंद करना पड़ेगा। We can't afford to. Possible? Yes, ma'am. आपको किस बात पे गुस्सा आता है? I was trying to imagine आपके जीवन में क्या हो सकता है जिसके लिए आपको गुस्सा है? असाइनमेंट पे गुस्सा आता है? हाँ? किस बात पे गुस्सा आता है? किस पे गुस्सा आता है? बोलो बोलो, किस पे गुस्सा आता है? किस पे गुस्सा आता है? एक एक करके बोलो। पेरेंट्स पे गुस्सा आता है, किस पे गुस्सा आता है? टीचर्स पे गुस्सा आता है? नहीं, पेरेंट्स भी नहीं, टीचर्स भी नहीं, फिर किस पे गुस्सा आता है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो। आप में से कोई एक बताएगा? व्हाट्स द आंसर? व्हाट आर दे सेइंग? They're saying, the teacher says they're saying yes for teachers. No, they're saying for assignment. No, they're saying no, हमें आप पे नहीं गुस्सा आता. So one of you stand up and say किस पे गुस्सा आता है? They're saying for assignment. For assignment पे गुस्सा आता है? वो तो कागज का टुकड़ा, उसको कैसे गुस्सा करेंगे? किस पे गुस्सा आता है? I have to know what is the cause of my irritation and how am I going to heal it.
Otherwise, karte, that will be my personality. If today I can get irritated and angry with small things, I will not be able to be stable tomorrow under high pressure. It's like जो यूनिट टेस्ट में डरता है वो फाइनल एग्जाम में पीसफुली नहीं जा सकता, नहीं हो सकता ना। ये किस बात पे था? आज हमारी जीवन सिर्फ टेस्ट और एग्जाम तक ही है। And now I have to ask myself, if I create fear, anxiety, pain just before a unit test, what will I do when somebody is dying in front of me? How will I do it? What will I do if I have to handle something in crisis? You have to think again. You have chosen a profession which is not only 4 years of study. It requires us to be emotionally very strong. Very strong. लोग तो कोई थोड़ों का खून देख के बेहोश हो जाते हैं, हम थोड़ी वैसे होने वाले हैं, हम कैसे होने वाले हैं? We are choosing to be emotionally very strong. So from today, we will have to start working on our way of thinking, on the way we are with people. अगर आज हम लोगों से इरिटेट हो जाते हैं, then be rest assured कि 4 साल बाद हम पेशेंट के साथ भी इरिटेट होंगे, क्योंकि वो इरिटेट होना हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा होगा। हम चेंज नहीं हो जाएंगे सडनली। जब हम थक जाते हैं, हमारे ऊपर काम बहुत ज्यादा है, तब हम घर को भी संभाल रहे हैं। आज तो हम घर को नहीं संभाल रहे, हम परिवार को भी संभाल रहे हैं, हम ड्यूटी भी कर रहे हैं, हम सीनियर्स की डांट भी खा रहे हैं। उस सब को सहन करके स्टेबल रहना है, हमें करना है। वो करना नहीं करना, तो फिर इसकी प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। आज से हमें हर रोज एक चार्ट रखना पड़ेगा। हमने सबसे आज कैसे बात की, सामने वाले ने चाहे कैसे भी की, क्योंकि पेशेंट तो कैसे भी कर सकता है, पेशेंट तो कैसे भी बात कर सकता है ना। वो तो परेशान है, वो अपनी बीमारी से घबराया हुआ है, तो वो तो गुस्सा भी कर सकता है, वो आपको डांट भी सकता है। क्या नर्स वापस डांट सकती है? नहीं। सो लुक एट द हाई टॉलरेंस लेवल दैट वी हैव टू क्रिएट. So we are lucky, no? We can start doing it from now. When we look at people who are ill, वो बीमार हैं, तो उनको फिर भी एक्सेप्ट करना इजी होता है कि ये बीमार है ना, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे आसपास के लोग वैसा करते हैं, तो क्या वो बीमार है? क्या वो बीमार है? वो भी बीमार है। गुस्सा कौन करता है? जो बीमार होता है वही तो गुस्सा करता है। बीमार मीन्स एक होता है किसी का शरीर बीमार है, एक होता है किसी का मन बीमार है। ईर्ष्या कौन करेगा? जेलसी कौन क्रिएट करेगा? जो बीमार है। इनसिक्योर कौन फील करेगा? जो बीमार है। If we start looking at each other like that also, that if this person is behaving like this, talking like this, being wrong to me, then inside this person is in pain. And let us start healing from today. We are not going to heal after 4 years. शरीर बीमार होता है, दवाई खिलानी पड़ती है। किसी का मन बीमार होता है तो क्या खिलाना पड़ता है? देखा, आंसर हमें पता है। हम क्या खिला देते हैं उस टाइम? तो इट्स लाइक आपके पास कोई आए और वो आपको कहे, सिस्टर इतना सिगरेट पीने से मुझे कैंसर हुआ, तो आप कहेंगे और सिगरेट पियो अभी। इट इज लाइक दैट। Someone comes to us in pain and we get angry with them. So what are we doing to them? They are in pain, we are giving them more pain. And by giving them, who's the first person who's getting it? Me. So it's like saying, अगर आपको कैंसर है तो मेरे को भी होना चाहिए फिर आपके साथ साथ।
उसने मुझे गुस्सा किया तो मुझे तो गुस्सा आना ही था, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने तो ऐसा बोलना ही था, ऑब्वियसली मुझे बुरा लगेगा, ऑब्वियसली मुझे नाराजगी होगी। ये सब वर्ड्स कहते कहते वेरी सून वी स्टार्टेड बिकमिंग लाइक व्हाट पीपल वर विद अस। सारा दिन में हम कॉपी करते हैं लोगों को। अगर कोई हमसे प्यार से बात करता है, हम भी उससे प्यार से बात करते हैं, लेकिन अगर हमसे कोई गलत बात करता है तो हम भी वापस। तो ऐसे कॉपी करते करते क्या हो जाएगा, उनकी बीमारी हमारी बीमारी बन जाएगी। अगर किसी ने गुस्सा किया, हमने भी गुस्सा किया, तो उसकी बीमारी हमें लग गई ना फिर। तो अगर हम सबकी बीमारियां पकड़ते रहेंगे तो हमारा इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाएगा? You have to remember one thing. The people whom you will heal are not people who are only physically diseased. जो बीमार होता है वो दुखी होता ही है। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो बीमार हैं लेकिन खुश हैं। That's very rare. Mostly people are going to be in pain because they are ill, and it's not one person in pain, whole family. किसी के घर में इलाज करने के पैसे भी नहीं है, किसी के घर में घर संभालने के लिए कोई नहीं है, तो उस घर में चिंता का लेवल कितना हाई होता है। तो वी आर गोइंग टू बी डीलिंग विद पीपल हु आर नॉट फिजिकली ओनली इन पेन, वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी डीलिंग विद पीपल हु आर इमोशनली इन पेन। फिजिकली के तो हम फिर भी एक ग्लव पहन लेंगे, अपने आप को बचा लेंगे। इमोशनली अपने आप को बचाने के लिए कौन सा ग्लव पहनेंगे? क्या करना पड़ेगा? कौन सा ग्लव होगा अपने आप को इमोशनली बचाने का? पॉजिटिव एनर्जी। इमोशनली अपने आप को बचाने का कौन सा ग्लव पहनेंगे? पॉजिटिव। जब दो लोग मिलते हैं, दोनों की एक एनर्जी फील्ड होती है। और एनर्जी फील्ड मतलब हमारा व्यक्तित्व, हमारा सोचने का तरीका, वो हमारी एनर्जी फील्ड क्रिएट करता है। जब दो लोग मिलते हैं तो दो लोगों की एनर्जी फील्ड एक दूसरे से मिलती है। जो जितना पावरफुल होगा उसकी एनर्जी दूसरे पर प्रभाव डालेगी। ठीक है? अब अगर जो नेगेटिव वाली एनर्जी है वो ज्यादा पावरफुल है तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव डलेगा, लेकिन अगर हमारी पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा पावरफुल है तो हमारा प्रभाव उस पर डलेगा। लेकिन उसके लिए हमें अपनी एनर्जी फील्ड पर ओवरऑल मेहनत करनी पड़ेगी। क्या ये पॉसिबल है कि हम आज से गुस्सा करना कम नहीं कर सकते? बंद नहीं कर देते ना, कम भी क्यों करना? जो चीज आज कम करेंगे, सी हाउ इट इज, इट्स लाइक एनी अदर एडिक्शन। अभी आपको डॉक्टर सचिन भी आज मिलेंगे, वो डी एडिक्शन के बारे में बताएंगे। तो वो आपको ये नहीं बोलेंगे किसी को भी कि सिगरेट कम कर दो, अल्कोहल कम करो, कहेंगे बंद करनी पड़ेगी। क्यों बंद करनी पड़ेगी? अगर कम की तो जैसे ही थोड़ा सा भी प्रेशर होता है तो वो कहते हैं अब तो मेरे को टेंशन है तो मेरे को सिगरेट पीनी पड़ेगी। तो हमारे जीवन में भी जैसे ही प्रेशर आएगा तो वो जो थोड़ा वाला गुस्सा होगा वो बढ़ जाएगा। हमें अपनी एनर्जी फील्ड से सारी नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन करके खत्म करना है। कर सकते हो गुस्सा खत्म? आपने मुझे बताया ही नहीं अभी तक कौन सी बात पे गुस्सा आता है, इसीलिए खत्म नहीं हो रहा। असाइनमेंट से डर लग सकता है, असाइनमेंट पे गुस्सा कैसे आ सकता है? गुस्सा किस पे आता है? किसी ने कल गुस्सा किया सारे दिन में? ओए, मतलब यहाँ डेली चलता है? अच्छा, कल किसने गुस्सा किया? हाथ उठाए। अच्छा, वी आर टॉकिंग ऑफ अ वेरी नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी थिंग इन लाइफ जो रोज ही होती है ना? अच्छा, कल किसने गुस्सा किया था? हाथ उठाओ एक बार। एनीबडी वांट्स टू शेयर कल किस बात पे गुस्सा आया? आप शेयर करते हैं अगर, तो आप 1 से 100 लोगों को बेनिफिट होता है। एनीवन वांट्स टू शेयर कल किस बात पे? हाँ बताओ। शेयर हमेशा करनी चाहिए अपनी बात। मैं
डॉक्टर को कुछ तो बता रही थी अबाउट सम प्रोसीजर दैट पेशेंट इज अंडरगोइंग सम पेन मींस कैन यू गिव हिम समथिंग सम मेडिकेशन कैन आई गिव हिम देन ही वाज नॉट लिसनिंग ही सेड दैट आई एम सीइंग अदर पेशेंट जस्ट वेट एंड आई टोल्ड हिम ट्वाइस थ्राइस दैट ही वाज नॉट लिसनिंग एंड एट लास्ट ही गेट एंग्री ऑन मी एंड आई गो एंड आई sat outside. You went and what did you start doing? I got at the side of the patient and I was telling that wait रुको डॉक्टर अभी आएंगे हाँ. आएंगे वो थोड़ी देर में दवा देंगे फिर हाँ. दर्द कम हो जाएगा तब तक आप आराम करो तो दर्द का लेवल अपने आप कम हो जाएगा like that हाँ. and the patient slept at last but doctor didn't came so I was angry on that. You were angry with the doctor? Yes. बोला तो नहीं ना कुछ गुस्से में उनको? नहीं. अंदर गुस्सा था ना अंदर सिर्फ? गुस्सा था. अंदर गुस्सा था. कितनी देर चला? फिर भी जब तक मैं वार्ड में थी up to 11:50. कब से कब तक? ये मैंने पेशेंट देखा था अराउंड 10:30 को. तो 1 घंटा. अब जब वो डॉक्टर दिखेंगे अगले 1-2 दिन के लिए है ना? नाउ इसमें ऑप्शन क्या था हमारे पास? जो सामने वाला, अब ये सीन तो बार बार आएगा ना आगे चल के भी. ये तो सिर्फ आ नहीं रहे थे, आपको तो ऐसे भी लोग आपके आसपास मिलेंगे जो गलत करेंगे, क्योंकि हर एक का सिंसियरिटी, ऑनेस्टी सब कुछ सेम नहीं होगा. एंड ये भी हो सकता है कि इस टाइम वो जेन्युइनली कोई और चीज कर रहे थे, उनको वो खत्म करके फिर इस पर आना था. हर एक की सिचुएशन अलग अलग थी. नाउ सपोज विजुअलाइज योरसेल्फ, you're a nurse and your doctor is not coming to attend a patient. What thoughts can you create at that time? क्या कर सकते हैं? अभी क्या गुस्से की थॉट मतलब क्या थॉट? गुस्सा मतलब क्या थॉट? क्या चल रहा था माइंड में? बोलो जो चल रहा था, इट डजंट मैटर. वो यहाँ बैठे तो नहीं हुए ना? क्या चल रहा था माइंड में? अपना ड्यूटी नहीं कर रहे. वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, वो पेशेंट को देखने नहीं आ रहे. देखने नहीं आ At the रहे. same time, in front of many patients, I'm telling him to do means he's having pain, but in other words, he's disrespecting me also. Disrespecting you also? Yes, in front of other patients. I thought he was disrespecting the patient, but he is disrespecting you also. Very good. मैं कह रही हूँ तो भी नहीं सुनते. हाँ, very true. और कोई बात अंदर से और कुछ गंदा तो नहीं बोला उनको? ये है अपनी सोच को चेक करना कि ये सिचुएशन आई, मेरी सोच क्या क्या चली. अब सिर्फ साक्षी होकर अभी बताएं कि वो डॉक्टर किसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे एक्चुअली? अपने आप को, अपने आप को. आप एक हीलर हैं, कोई आपके सामने दर्द में है और आप हील नहीं कर रहे, अगर जेन्युइनली नहीं कर रहे, नॉट बिकॉज यू आर स्टक अप समवेयर, तो आप किसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं? किसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं? इट्स लाइक एक मदर है, बच्चा रो रहा है, ठीक है, बच्चा रो रहा है, लेकिन मदर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. वो ना बच्चे को उठा रही है, ना खिला रही है, ना प्यार से संभाल रही है, तो वो किसको डिसरिस्पेक्ट कर रही है? खुद को, अपने आप. इसमें इंसल्ट किसकी हुई? अगर वो मदर बच्चे को नहीं संभाल रही और एक थर्ड पर्सन आता है, फ्रेंड आती है और कहती है तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तुम आओ जल्दी उसको संभालने के लिए, वो फिर भी नहीं उठा रही. अब ये मदर, ये बच्चा और वो फ्रेंड, किसने इंसल्ट की? किसने किसकी इंसल्ट की? बच्चे की इंसल्ट हुई? नहीं. फ्रेंड की इंसल्ट हुई? नहीं. तो किसकी इंसल्ट हुई? तो कल किसकी इंसल्ट हुई? सिंपल, गुस्सा खत्म. अब गुस्से के बदले उस डॉक्टर के प्रति कंपैशन, कि अंदर से इस आत्मा को कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है, सामने कोई दर्द में इसके ऊपर कोई. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब लोग बहुत ज्यादा दर्द के साथ काम करते करते थोड़े टाइम के बाद उनके ऊपर दर्द का कोई असर नहीं होता सामने वाले का, है ना? क्योंकि जो सेंसिटिविटी लेवल होती है वो धीरे धीरे करते करते उनके लिए
एक डॉक्टर या एक नर्स के लिए इंजेक्शन लगाना, दवाई खिलाना, काटना फाटना इज लाइक घर पे आप नमक मिर्ची डाल के सब्जी बनाना. Yeah, it's as casual as that because you're going to do it for 12 hours of the day. तो धीरे धीरे अगर हम अपना ध्यान नहीं रखते तो हमारा कंपैशन लेवल वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए वो रोज की चीज हो जाती है. जो चीज हम कर रहे हैं, जैसे खाना बनाने में भी आप देखो, कुछ लोग बहुत प्यार से खाना बनाते हैं और कुछ लोग खाना बनाने के लिए खाना बनाते हैं. दोनों में फर्क. कुछ लोग बहुत प्यार से एक रिचुअल की तरह खाना बनाते हैं और उनके हाथ का जब आप खाना खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये खाना कितने प्यार से बनाया हुआ है. और कुछ लोग खाना बनाना ना, डाल ये डाल घुमा, खाना बन गया. तो उनके अंदर उनके कर्म के प्रति कंपैशन जो है वो खत्म हो गई. तो जब हम किसी और को ऐसा देखते हैं, सो रादर देन गेटिंग एंग्री विद देम, फर्स्ट वी शुड हैव मर्सी फॉर देम कि इनके अंदर कंपैशन ही खत्म होती जा रही है. तो वो पेशेंट बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, डॉक्टर बीमार है. जिस व्यक्ति के अंदर से कंपैशन खत्म हो जाए, मतलब अंदर से वो कैसे हो गए, बहुत कड़क कड़क, उनको फीलिंग नहीं आती किसी चीज की. तो उस आत्मा के प्रति गुस्सा नहीं करना, उस आत्मा के प्रति रहम कि इनको क्या हुआ, इनको कुछ लगे नहीं रहा. और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्होंने इंसल्ट किसी की नहीं की. अब ये सब हम जब देखते हैं, हम ये उनको नहीं फोर्सफुली वहां ला सकते ठीक करने के लिए. तो हम एज ए नर्स उस टाइम क्या कर सकते हैं, खुद जो आता है वो कर सकते. सपोज हम दवाई नहीं खिला सकते, अभी हमारे पास वो पावर नहीं है कि हम दवाई नहीं खिला सकते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं उस टाइम? सिर्फ हम क्या कर सकते हैं उस टाइम? सिर्फ first you get stable and then comfort. Even if you're with the patient, you're not allowed to give any treatment, but only if you're there with the patient with all your peace, love and care. तो जब तक तो वो डॉक्टर पहुंचेगा तो पेशेंट ऑलरेडी आधा ठीक हो गया होगा. आपको मालूम है आज दुनिया में कितने लोग हैं जो सिर्फ एनर्जी से हील करते हैं? सुना आपने उनके बारे में? Yes. क्यों? आज प्राणिक हीलिंग है, रेकी है, एनर्जी हीलिंग है. दुनिया में आज इतने लोग हैं जो हाथ लगाते हैं और ठीक कर देते हैं दूसरे को. ये सब लोग कैसे काम कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? ये सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी दूसरे को रेडिएट कर रहे हैं. वो दूसरा नजदीक बैठा हुआ हो सकता है, वो दूसरा कहीं बहुत दूर बैठा हो सकता है. एनर्जी वर्क्स ऑन द एनर्जी ऑफ द अदर पर्सन. So if I don't have the power to give the medicine, but nobody can stop me from giving my energy to the other person. Yes or no? I was getting a procedure done and it was a painful one without anesthesia. So the doctor said, करना है anesthesia या बिना anesthesia के करना है? I said, नहीं, if you feel नहीं जरूरत है तो नहीं करते हैं. So he said, नहीं. So there was another lady doctor, she just stood behind my head. And she just kept doing this on my head while the thing was going on. You know, जैसे सर पे एक माँ खड़े होकर कैसे हाथ फेरती है, सिर्फ उसका वो हाथ फेरने से ही मुझे उस चीज का कोई दर्द नहीं हुआ. Because she was not doing it mechanically like this. She was not doing it because she should do it. She didn't need to do it. But she felt like doing it. So when you feel like doing it, all your love, that heals the person. अब उसने ना दवाई दी, ना एनेस्थीसिया दिया, ना कुछ भी नहीं दिया. But she just stood there with all that love. आधा घंटा वो यही करती रही बैठ के पीछे से. But she was doing it with feeling. We only have to take care that we don't become mechanical over a period of time. आपको पता है नर्सेज जनरली बहनें क्यों होती हैं? फीमेल एनर्जी क्यों नर्स बनती है ज्यादा? क्या लॉजिक है उसके पीछे? मदर फीलिंग ऑफ मदर. क्योंकि मेन में सब में वो वाली एनर्जी नहीं होती है. यस, एंड दैट एनर्जी इज नहीं. No, it's not to clap. It's a different personality in two people. It doesn't mean all women have it. No, all women don't have it, and there are a lot of men who have it.
but it's only because you have the capacity to be a mother, and a nurse should actually be a mother. A mother who's there just to heal, just to nurture, जिसके एक टच से ही सामने वाला ठीक हो जाता है, जिससे मिलते ही सामने वाले को लगता है ये मेरे लिए है, मेरा ध्यान रखने के लिए। वो बॉन्डिंग, वो एनर्जी, वो हमारे पास है, इसलिए हम इस रोल में हैं। तो हर सिचुएशन में जल्दी जल्दी रिएक्ट करने की बजाय, क्योंकि हर बार जब हम एक चीज फॉर्मूला आज पक्का कर लेना, जितनी बार आप रिएक्ट करेंगे, मतलब इरिटेट हो गए, जोर से बोल दिया, अंदर से चलता रहा, आप अपनी बैटरी को, अब जैसे 1 घंटा गुस्सा रहा तो 1 घंटा बैटरी क्या हुई? डिस्चार्ज हुई ना। A healer cannot afford to have their battery get depleted because they are supposed to charge other people. You're supposed to charge other people. अगर एक डिस्चार्ज बैटरी के साथ एक डिस्चार्ज बैटरी को कनेक्ट कर दो, क्योंकि हर पेशेंट जो आ रहा है वो तो डिस्चार्ज बैटरी है ना, दुखी है, डिप्लीटेड है, और अगर हम भी थोड़े से दुखी हैं तो हमारे साथ उस बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तो उसकी जितनी है वो भी खत्म हो जाएगी। ऐसे कई बार पेशेंट इतना इरिटेटेड होता है इतने लेवल पर, लेकिन डॉक्टर या नर्स को मिलने के बाद उसका इरिटेशन बढ़ जाता है। तो हमने बैटरी को क्या कर दिया? यस। अगर हमने ऐसा किया तो हमने अच्छा कर्म नहीं किया। दर्द में आए हुए व्यक्ति को अगर हमने और दर्द दिया तो हमारा कौन सा कर्म क्रिएट हो गया? सोचो, ऐसे व्यक्ति के बारे में घर जाके हम कैसा सोचेंगे? आप कभी गए हैं डॉक्टर के पास? When you're not well, yes, or when somebody in the family is not well, अगर डॉक्टर ठीक से बात नहीं करता, हमारे प्रश्नों का ठीक से जवाब नहीं देता, फटाफट से लिखकर हमें बाहर भेज देता है, आप घर आके उसके बारे में कैसा सोचते हैं? वो सारा कुछ जो आप सोचते हैं वो नेगेटिव एनर्जी है जो उस तक पहुंचेगी है। और यही अगर कोई आपसे बहुत प्यार से बात करता है, आपके मन को संतुष्ट करता है, आपकी सारी बातों के आंसर देता है, तब आप घर जाके उसको क्या देंगे? तब हम उसको दुआएं देते हैं। आप उस प्रोफेशन को चूज कर रहे हैं कि अगर आप उसमें थोड़ा सा ये कंपैशन और प्यार ऐड कर दें, आप सारा दिन में दुआएं दुआएं और दुआएं कमाएंगे। दुनिया में कोई और प्रोफेशन नहीं जिसमें इतनी दुआएं कमाई जा सकती हैं। कोई और प्रोफेशन नहीं है जिसमें दुआएं कमाई जा सकती है। पैसा हर प्रोफेशन में कमाया जा सकता है, दुआएं प्रोफेशन में नहीं कमाई जा सकती। दुआएं कब कमाई जाएंगी? जब हम दुखी को सुख देंगे, दवा देंगे नहीं। हमने दवा दी, उसने पैसे दिए, हिसाब किताब बराबर, लेकिन हमने प्यार दिया, दुआ मिलेगी। लेकिन अगर हमने इरिटेशन दी तो फिर दुआ के ऑपोजिट भी एक वर्ड होता है। हाँ, क्योंकि अगर मैं दुखी हूं, दर्द में हूं और मेरे से सिस्टर ने ठीक से बात भी नहीं की, तो मेरे अंदर से उसके लिए क्या निकलेगा कि क्या बेकार है, मेरा ध्यान भी नहीं रखा ठीक से। तो ये दुआ का ऑपोजिट हो गया ना। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम सारा दिन में दुआएं कमा रहे हैं या दुआओं की ऑपोजिट तो नहीं कमा ली कहीं पे। और वो सबसे कैसे इजी है कि कोई नेगेटिव आया, मुझसे मिलकर वो और थोड़ा पॉजिटिव हुआ या मुझसे मिलकर वो नेगेटिव हुआ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं उनसे मिलकर कैसे हुई। तो आज से हमारे को ये इतना अटेंशन रखना पड़ेगा कि हम अपनी बैटरी को छोटी छोटी चीजों में डिस्चार्ज नहीं कर सकते। आपको लगता है जिम्मेवारी या नहीं लगती जिम्मेवारी? क्योंकि नहीं तो आज तो आप बच्चे हो, कल आपका एक परिवार होगा। जब पूरे दिन के काम के बाद डिस्चार्ज होके घर पहुंचते हैं ना आज लोग, तो वो अपने घर में जाके बहुत अच्छी एनर्जी नहीं देते घर के लोगों को, क्योंकि वो घर पहुंचते हैं तो कैसी हालत में पहुंचते हैं? बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज। फिर वो छोटी छोटी बात पे इरिटेट होते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर देते हैं, तो उनके घर के रिश्ते फिर क्या होने लगते हैं? अफेक्ट होने लगते हैं। इस सब से बचने के लिए हमें अपनी बैटरी को कैसे रखना पड़ेगा? चार्ज।
ताकि हम जब काम पर हैं तब भी हम सबके साथ बहुत प्यार से हैं, हमें दुआएं मिलती हैं, और ये सारी दुआएं इकट्ठी करके जब शाम को हम अपने घर जाएंगे तो फिर हमारी बैटरी दुआएं कमा कर कैसी हो जाएगी? बैटरी चार्ज हो जाएगी। ऐसा होना चाहिए कि सुबह जब हम गए हॉस्पिटल तो इस लेवल पे थे, लेकिन सारा दिन में इतनी दुआएं कमाई कि इस लेवल पर पहुंच के घर आए। भले थके हुए हैं, वी कैन बी फिजिकली टायर्ड बट मेंटली वेरी लाइट। Physically we will be tired but mentally light, and some people can be physically doing nothing but yet mentally very irritated. हाँ? तो दोनों का कनेक्शन नहीं है, दोनों completely अलग अलग चीजें हैं। भले हमारा काम बहुत मेहनत का होगा, we will be working night shift, we will be standing the whole day, we will be physically working very hard, but we will also be earning lot of blessings. एक एक जब दर्द में होता है वो ठीक हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। लेकिन वो अच्छी अच्छी फीलिंग तब क्रिएट होगी जब हम अंदर से खुश रहते हैं। तो आज से हमारा एजेंडा बनाना पड़ेगा हमें कि आई कैन नॉट अफोर्ड टू डिस्चार्ज माई बैटरी। सामने वाला हो भी रहा हो डिस्चार्ज, मुझे अपने आप को उसके प्रभाव से क्या कर लेना है? Nobody can get us to getting angry. We choose to get angry. लोग हमें गुस्सा दिलाते हैं या हम खुद गुस्सा करते हैं? हम खुद गुस्सा करते हैं। खुद गुस्सा करते हैं। लोग हमें गुस्सा दिलाते हैं या हम खुद गुस्सा करते हैं? सपोज किसी ने आकर आपसे कुछ कहा, किसी ने आपको आके डांटा भी, कुछ गलत भी कह दिया जो आपने किया नहीं है उसके लिए भी डांट दिया। वो एक सिचुएशन है जो बाहर से आई है, और ऐसी बहुत सिचुएशंस जीवन में आने वाली हैं 100%। कभी टाइम मिले ना तो अपने बड़ों का जाके इंटरव्यू लेना चाहिए कि हमारी आने वाली जीवन कैसी होती है, घर कैसे होते हैं, हॉस्पिटल कैसा होता है। चैलेंजेस पता होने चाहिए आने वाली जीवन के लिए, नॉट टू गेट स्कैर्ड बट टू गेट इक्विप्ड। क्योंकि जब हम आने वाले जीवन के चैलेंजेस देखेंगे तो आज की असाइनमेंट हमारा जो क्षेत्र होता है ना, हम उसी में छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं। जस्ट द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू समवन एंड आई सेड 20 साल काट दिए एग्जाम को सबसे बड़ी मुश्किल चीज बना के जीवन के अंदर, एंड 20 साल बाद के पता चला कि एग्जाम के नंबर तो कोई पूछता ही नहीं आगे जाके। पहले बता दिया होता तो हम इतनी टेंशन ही ना करते 20 साल में। You know, 20 years we go through stress for an exam. After that, who's going to ask you your marks? But in those 20 years, we get habituated to creating stress. And then the exams of life that we have to face, which are really, really important, वहां हमें स्ट्रेस क्रिएट करने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि हम 20 साल एग्जाम देते वो क्रिएट करके आए हैं। वर्किंग हार्ड, वर्किंग सिंसियरली, एंड दैट्स इट, फुल स्टॉप। लेकिन उसकी चिंता, फिर उसके नंबर मेरे से ज्यादा क्यों आ गए, वो तो एक अननेसेसरी चिंता है, बाकी है को। ये सारी चीजें हम अपने नंबर औरों के साथ कंपेयर करते हैं? खुश रहना है, दूसरों के नंबर देखना बंद कर दो। Yes, what does it have to do with me? I only have to see, I studied this much and this is what I felt I should get. Did I get more? Did I get less? If I got less, why? What do I have to do next time? Finish. अब इधर और उधर देखने से क्या मिलेगा? If we create a thought, इसके नंबर इतने कैसे आ गए? What quality of thought is that? किसी और की खुशी पर, किसी और की सक्सेस पर दुखी होना। इट्स लाइक सेइंग क्यों आए इतने नंबर, कम आने चाहिए थे। मेरे ज्यादा आने चाहिए थे इज ओके, लेकिन इसके इतने क्यों आए, कम आने चाहिए। व्हाट इज माय एनर्जी फील्ड गेटिंग क्रिएटेड? वेरी सटल। एंड देन सिटिंग एंड थिंकिंग, ये तो मूवी भी गई थी, ये तो उस दिन इधर भी गई थी, उधर भी गई थी,
तो भी नंबर ज्यादा आ गए। मैंने तो सिंसियरली किया था, मैंने तो आगे से इसको अपनी असाइनमेंट भी नहीं दिखानी। तो हमने अपनी वर्च्यूज को, अपनी क्वालिटीज को धीरे धीरे क्या कर लिया, ऐसे कर दिया। जितना ऐसे कर दिया, हमारी बैटरी डिप्लीट होती गई। किसी के नंबर ना देखें। आपको पता है एक रेस में क्या करते हैं? सिर्फ अपनी रेस में रूल बताया जाता है स्टार्टिंग में कि कहाँ देखना है। अपने रास्ते पे जबकि वो एक रेस है, ये तो रेस है भी नहीं। जबकि वो एक रेस है तो भी वहां रूल क्या बताया जाता है, इधर और उधर नहीं देखना। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट कि इधर और उधर नहीं देखना? देखना तो अच्छा है ना, मुझे दिखना चाहिए ये कहाँ है, ये कहाँ है, फिर मैं जा सकती हूँ अकॉर्डिंगली। क्यों कहा जाता है इधर और उधर नहीं देखना? टाइम वेस्ट थोड़ी होता है इतना सा करना है। क्या लॉजिक होगा? नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना। डर जाओगे, भाई बताएंगे। कॉन्सेंट्रेशन इज गॉन। और क्या होगा? फोकस हमारे अपने आप से हट जाएगा। और क्या होगा? डर जाओगे दूसरों को देख के। राइट। सो अगर हम, डाइवर्टेड, हाँ जी, डाइवर्ट हो जाएंगे। तो अगर हम सिर्फ सीधा देख के भागते हैं, सीधा देख के भागते हैं, तो हमारी जितनी कैपेसिटी है वो हमारी उसमें लग जाएगी। राइट। अगर हमने थोड़ा सा इधर और इधर देखा, एंड वी क्रिएटेड अ लिटिल फियर, अ लिटिल एंजाइटी, अ लिटिल इनसिक्योरिटी, तो अगर हमारी कैपेसिटी 100 थी वो 95 हो जाएगी। हो जाएगी ना? फिर तो किसके मार्क्स पे देखें? अपने ये हमारी गलती नहीं थी, एक्चुअली हमारे पेरेंट्स ने शुरू किया था जब हम स्कूल में थे। हाँ, है ना? लेकिन कोई बात नहीं ना, हम चेंज करेंगे, क्योंकि अगर अभी हमने नहीं चेंज किया, वेरी गुड, हम भी यही करेंगे 5-6 साल के बाद से। आप देखो छोटा बच्चा, कभी नहीं करना अपने बच्चों के साथ ऐसा, बचपन से उनको सिखा देते हैं। स्कूल से जब हम आते थे ना वापस, तो पेरेंट्स पहली चीज पूछते कैसा हुआ एग्जाम, तो अच्छा हुआ। सेकंड क्वेश्चन पूछते बाकी सबका कैसे हुआ। इररिलेवेंट क्वेश्चन, irrelevant question. What happens because of comparison with other people? The focus is not on my capacity, the focus is as long as I'm doing better than the other person. It's like suppose एक Mercedes है, एक मारुति है, तो Mercedes की कैपेसिटी कितनी है अपनी चलने की, लेकिन सिर्फ क्योंकि Mercedes मारुति से आगे जा रही है तो खुश हो जाना चाहिए। मेरी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी कितनी है? Suppose I'm coming first in the class, but that first means I'm getting 65%, but I'm first in the class. But I'm happy and my parents are happy because I'm first in the class. But actually possible that I had a capacity of getting 75%. But I became satisfied with 65 only because it was more than everybody else. And suppose my capacity is 65. And I have got 65, but just because it is lesser than other people, I will not be happy. And if I am not happy, then my potential to increase my capacity will reduce. I should know my capacity. Even अगर हमारे पेरेंट्स को हमारी कैपेसिटी नहीं पता, हमें अब अपनी कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि मुझे कितने करने हैं, कहाँ तक पहुँचना है, कितने नंबर मेरे आने चाहिए. And then work towards that. And then when you compare only with your capacity. किसी और के साथ compare करके कैसे चलेगा? It's like कोई रोज जॉगिंग करता है तो वो 5 किलोमीटर रोज चल लेता है क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी है. हम सपोज आज पहली बार वॉक पे चलना शुरू किया, तो हम किसके साथ कंपैरिजन करेंगे? Suppose I am walking for the first time, my foot is also paining, but slowly धीरे धीरे करके I walk up to 1 kilometer. Should I be happy or should I be sad? happy. But I will not be happy when I say, but लेकिन वो तो 5 किलोमीटर चला ना. Because I'm not comparing capacity, I'm just comparing the result. We cannot afford to be unhappy. We cannot afford to create jealousy. What will happen when we create jealousy?
Deplete our energy. हमारी वाइब्रेशन कैसे जाएगी सामने वाले को? Negative. आपको कभी वाइब्रेशन आती है जब कोई आपसे ईर्ष्या करता है? Yes, ma'am. Yes. हमारी एनर्जी फील्ड नेगेटिव होती जा रही है. उनके नंबर ज्यादा आए, बढ़िया, वेरी गुड. उनको इतनी दुआएं दो कि एक्स्ट्रा उनके अगली बार उससे भी ज्यादा आए. और मैं भी उतनी मेहनत करूं कि मेरी कैपेसिटी के मेरे बेस्ट आए. ईर्ष्या की मार्शन कहाँ है? ईर्ष्या का संस्कार अभी से हुआ तो आगे जाके पूरे जीवन रहेगा. पूरा जीवन रहेगा. वो डॉक्टर आए, उन्होंने उस सिस्टर से प्यार से बात कर ली. उन्होंने उस नर्स को बोल दिया तुमने बहुत अच्छा किया तो एक्चुअली मैंने था. ये छोटी छोटी चीजें हमारी खुशी को क्या कर देगा? मैंने किस लिए किया? मैंने किया बिकॉज हीलिंग इज माई रोल, आई लाइक इट एंड आई हैव डन इट एंड आई एम हैप्पी. आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर समबडीज appreciation and recognition to feel happy. ये छोटी छोटी लीकेजेस अपने अंदर से क्या करनी पड़ेगी? तो अपनी कैपेसिटी को अच्छी तरह से इवैल्यूएट करना है और अपनी कैपेसिटी के अनुसार परफॉर्म करके फिर अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है. बट इट कैन नेवर बी इन कंपैरिजन विद अदर पीपल. दैट इज अनफेयर टू. आपको पता है पेरेंट्स कितने अनफेयर होते हैं जब वो बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं. अनफेयर लगता है वो या नहीं लगता? कभी भाई बहन के साथ कंपेयर कर देते हैं, कभी पड़ोसियों के साथ कंपेयर कर देते हैं. इज इट फेयर? बट देन इज इट फेयर व्हेन वी आर डूइंग इट नाउ टू आवरसेल्व्स? इज इट फेयर दैट वी आर डूइंग इट नाउ टू आवरसेल्व्स? हम भी तो वही चीज कर रहे हैं ना. तो अपनी कैपेसिटी पे फोकस करेंगे ना तो ईर्ष्या नहीं होगी कभी किसी से. क्योंकि दूसरे को जो नंबर मिले वो किसकी कैपेसिटी से मिले? उसकी कैपेसिटी से मिले. मुझे जो मिले वो मेरी कैपेसिटी से मिले. और जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो एक सिंपल तरीका है, सब कुछ सबके साथ शेयर कर लो. सब कुछ जो आता है आज भी, and when you're working professionally also. Nowadays many people have got into the habit of becoming like this. ये मेरे को आता है. अगर मैंने दूसरे को सिखाया तो इवन सिंपल मैं आपको बताऊं, किसी को कोई सब्जी अच्छी बनानी बहुत आती है, आप उससे जाके पूछो कैसे बनाई. अगर उनको नहीं बतानी होगी ना कि कैसे बनाई है, बोलेंगे बस कुछ नहीं ऐसे किया हो गया खत्म. मीन्स दे डोंट वांट टू टेल बिकॉज दे वांट टू कीप देयर मास्टरी ओवर दैट थिंग. ऐसे लोग ऐसे हो जाते हैं अंदर से, उनको उतना ही आएगा जीवन में. सिर्फ ऐसा नहीं बनना है. पानी होता है ना जो रुक जाता है, तो वो रुका हुआ पानी धीरे धीरे कैसा हो जाता है? पानी अच्छा कौन सा लगता है? जो बहता जाता है. मतलब जो आता है वो सबके साथ शेयर करते जाओ. थिंग्स विल फ्लो थ्रू यू. और जितना औरों के साथ शेयर करेंगे तो उनसे क्या मिलेंगी? उनसे क्या मिलेगी? दुआएं मिलेंगी. जितना दुआएं मिलेंगी हमें जो आता है वो बढ़ता जाएगा. हमें जो आता है वो बढ़ता जाएगा. सो डू नॉट सी व्हाट एवरीबडी एल्स इज डूइंग. जस्ट डू व्हाट इज राइट फॉर अस. फ्लो करने दो एनर्जी को अपने आप से. बिकॉज हीलर मीन्स जिसकी एनर्जी क्या करे? फ्लो करे. हीलर की एनर्जी अगर ब्लॉक हो जाएगी तो वो हील कैसे करेगा? आपकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए? प्योर होनी चाहिए. तो आज से हम गुस्सा तो एक तो छोड़े. पक्का? आप सब इकट्ठे एक ही कॉलेज में? अलग अलग लेकिन एक ही जगह से इकट्ठे तो कई आए होंगे ना. तो फिर ये असाइनमेंट लेते हैं. ये भी तो असाइनमेंट हो सकती है. एंड दिस इज एन असाइनमेंट फॉर माई प्रोफेशन. आप ये देखो, सिर्फ आज चेक करो, जीवन में आपकी पहली जॉब के बाद आपके नंबर कोई नहीं देखेगा. आप ये जो फ्रंट रो में बैठे हैं ना, किसी से भी जाके पूछ लेना ये बात कि आपके नंबर रोज कोई देखता है? आज भी कोई नहीं देखेगा. लेकिन रोज ये देखा जाएगा, हाउ आर यू एज अ पर्सन. With your first marks you get your first job. After that everything that you get is based on how you are as a person.
तो उस मार्क्स के लिए गुस्सा, इरिटेशन, जेलसी इज नॉट वर्थ इट. बिकॉज फर्स्ट आ भी गए लेकिन गुस्से वाली नर्स बने तो मजा नहीं आएगा. आपसे कोई पेशेंट आपके मार्क्स नहीं पूछेगा. कोई पेशेंट आपको, सिस्टर कितने नंबर आए थे आपको कॉलेज में, पूछेगा कोई ऐसे? सी, इतनी हंसी आने वाली है. रियलिटी यही है. कोई पेशेंट नहीं पूछेगा, सिस्टर आप दोनों नर्सेज में से किसके नंबर ज्यादा आए, यू कम एंड ट्रीट मी. नो, पर्सन देखेगा दोनों में से लविंग कौन कितना है, केयरिंग कौन कितना है. कहेगा सिस्टर नहीं आप मुझे इंजेक्शन लगाओ. मैं तो खुद करती हूँ हॉस्पिटल में. एक सिस्टर होती है तो चुभा ही देती है वो सलाइन देने के टाइम, और एक सिस्टर होगी वो बहुत सॉफ्टली प्यार से देगी. सो ऐसे सिस्टर, वो वाली सिस्टर को भेजना करने के लिए. हु वांट्स पेन अननेसेसरीली. तो हम ये थोड़ी किसी से पूछेंगे कि नंबर कितने आए थे आपके. वो जो चुभाने वाली है वो बोलेगी नहीं लेकिन शिवानी बहन आई केम फर्स्ट इन माई कॉलेज. आई सेड इट्स ओके, नेवर माइंड, लेकिन दर्द तो मेरे को हो रहा है ना. व्हाट डू आई डू? So priorities in life have to be very clear. Who I am as a person will keep me happy and healthy, will heal everyone I meet, and will help me to create a very beautiful family. तो फिर assignment important है या नहीं है ये? पक्का? तो not allowed? क्या not allowed? गुस्सा नॉट अलाउड. और क्या नॉट अलाउड? कंपैरिजन तो बिल्कुल नॉट अलाउड. आगे से कोई अपने नंबर भी दिखाया, बोलो मेरे को नहीं देखना, मेरे को सिर्फ अपनी मार्कशीट देखनी है. मेरे को टेंशन नहीं चाहिए दूसरी कोई भी. और अननेसेसरी टेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मेरे अंदर उतनी पावर नहीं है पहले देखूं फिर उसको भूलूं. नहीं है तो मैं देखती ही नहीं पर किसी के कितने नंबर आए हैं. जब मैं थोड़ी पावरफुल हो जाऊंगी तब आपके नंबर देखूंगी. अभी मुझे सिर्फ किसकी मार्कशीट देखनी है. आदत इतनी पड़ जाती है कंपैरिजन की, लोग नोटिस बोर्ड पे जाके पहले दूसरे के नंबर देखते हैं, बाद में अपने देखते हैं. मतलब आप देखते हैं इसलिए आप हंसे और ताली बजाए. So we will focus only on our journey in this race. And most important is, it's not a race. Life is not a race. अगर आप भाग रहे हैं और रास्ते में कोई गिर गया तो प्लीज अपना भागना छोड़ के पहले उसको उठाना. ये नहीं सोचना अच्छा हुआ कम नंबर आए मैं भागती हूँ आगे. ऐसे लोग भागते हैं. आज दुनिया में बहुत लोग हैं जो सिर्फ भाग रहे हैं. उनको यही नहीं पता वो क्यों भाग रहे हैं. वो सिर्फ भाग रहे हैं. उनको सिर्फ ये मालूम है उनको भागना है बस. लेकिन अंदर भागते भागते अंदर से कैसे हो गए, बहुत दुखी है. अब उनको ये भी नहीं पता वापस के कैसे खुश होना है. हेल्दी भी नहीं है क्योंकि वो सिर्फ भाग रहे हैं, वो जीवन जी नहीं रहे हैं. हमें ऐसी जीवन नहीं क्रिएट करनी है. तो गुस्सा नहीं करना. और क्या नहीं करना हमसे? कंपैरिजन नहीं करना. ईर्ष्या तो बिल्कुल भी नहीं करनी. हीलर एंड जेलसी डजंट साउंड नाइस. एंड every day begin your 5 minutes meditation in the morning, and which means connecting to God and visualize yourself as a healer. आपको आजकल अभी इस 4 साल के दौरान भी पेशेंट्स के साथ काम करना पड़ता है. वेरी गुड. और क्या चाहिए फिर? तो रोज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करो और रात को अपना चार्ट लिखो कि क्या मेरे से आज कोई गलती हुई. And galti means in my way of thinking and behavior, not in terms of medically. Medically तो I'm learning. लेकिन अपना चार्ट रखेंगे तो नेक्स्ट डे व्यवहार बदल जाएगा. तो कल हम उस डॉक्टर के साथ गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करेंगे. धीरे धीरे आज किया, रियलाइजेशन आई, नेक्स्ट डे चेंज. अगर थोड़ा टाइम मेडिटेशन सीखें, आप मेडिटेशन सेंटर पर आकर भी मेडिटेशन सीख सकते हैं. ब्रह्मा कुमारी के मेडिटेशन सेंटर पर आपके जैसे बहनें हैं. सिर्फ ये बहनें भी सिर्फ सेवा कर रही हैं. फर्क ये है आपकी ट्रेनिंग हो रही है शरीर की बीमारी को ठीक करने के लिए और हमारी ट्रेनिंग हो रही है मन की बीमारी. लेकिन आपका रोल है शरीर और मन दोनों का ठीक करने के लिए. तो इसलिए वॉक इन टू एनी सेंटर एनी टाइम. आधे पौने घंटे के लिए भी आए, मेडिटेशन करने का तरीका सीख लें. एक बार तरीका सीख लिया फिर उसको रोज सुबह करें 5-10 मिनट. मेडिटेशन मीन्स बैटरी को चार्ज करना. एंड कीप अ डेफिनेशन वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू.
मुझे कैसा हीलर बनना है. What is my present and what is my future going to be? So when you write your future, don't write only the biggest hospital's name in your future. लेकिन write the personality, how will I be? And उसकी practice आज से. बातें आएंगी, परिस्थिति आएगी. Don't allow yourself to get reacting. चिढ़ लिया, बोल दिया, जोर से बोल दिया. Always have to remember, मेरी बैटरी क्या हो गई? Discharge. ऐसे लोगों से क्या है, ऐसे क्यों कर रहे? मेरी बैटरी डिस्चार्ज, मैं ऐसे बात नहीं कर सकती. हमारा व्यक्तित्व चेंज नहीं हो सकता कि जब हम पेशेंट के सामने डिफरेंट, फिर बाहर आए तो डिफरेंट नहीं होगा. इट विल हैव टू बी माई पर्सनैलिटी ऑलवेज, ऑलवेज. और असाइनमेंट पर तो बिल्कुल ही गुस्सा नहीं करना है ना. असाइनमेंट है, करना है प्यार से. थोड़ी कम ज्यादा नंबर भी आ गए ना, कुछ नहीं होने वाला. लेकिन एनर्जी गई, नुकसान होगा. बेस्ट अपना करना है, यस. केयरलेस नहीं होना, लेकिन फियर और केयरफुल में फर्क होता है. सिंसियरिटी एंड स्ट्रेस में फर्क होता है. सो यू हैव टू ऑलवेज चेक हम कंफर्टेबल कितने हैं. राइट नाउ सिट बैक अगेन 1 minute एंड विजुअलाइज योरसेल्फ. देखिए अपने आप को. दिस इज हु आई एम गोइंग टू बी एंड आई एम गोइंग टू सी दिस एवरी डे. Every morning, every night I will visualize this. This is my role of life. This is my goal in life. This is the purpose of my life. Healing. I'm not a nurse, I'm a healer. A healer heals mind and body both. शरीर को दवाइयां ठीक करेंगी, मन को मैं ठीक करूंगी. Just being in my presence, just talking to me, just with my vibration, people will get healed. My role to give blessings. सबको दुआएं देना, सबको प्यार करना, रहम करना, compassion, and बहुत सारी दुआएं कमाना. चाहे कुछ भी हो जाए, my energy field has to be charged, powerful. Om Shanti. रोज करेंगे, रोज करेंगे, रोज सुबह, रोज रात को. जो सोचेंगे, जैसे सुबह ये विजुअलाइज करेंगे ना, सारा दिन में आपको हेल्प करेगा. धीरे धीरे वो हमारे सबकॉन्शियस से फिर कॉन्शियस माइंड में, फिर हमारे व्यवहार में वो आता जाएगा. यस, परफेक्ट. एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? यस, एनीवन कैन स्टैंड अप. Good morning. Shout it out, don't wait for her to come. You can't? Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, I have just 2 questions. First one, आपने हमारे ट्यूटर्स को क्यों नहीं बुलाया? आपने सिर्फ स्टूडेंट्स को बुलाया. क्यों? उनको क्यों बुलाना था? मैं ऐसे नहीं बोल रही, they are ours, no, the one who give us stress. But the problem is, हमारा प्रॉब्लम है कि हमारा एज ऐसा है कि
फर्स्ट रिएक्शन इज ऑलवेज हम प्रोडक्ट चाहते हैं, हम कोई क्यों बोल रहे हैं. एंड सेकेंड थिंग इज देयर इज नो पॉजिटिविटी समवन टू सिट बैक एंड टेल अस कि नहीं पापा ऐसे नहीं. घर पे कैसे था, लाइक वी आर 4 years नाउ. तो हमको रियलाइज होता है कि जो फर्स्ट ईयर में आए थे मम्मा से ज्यादा बात करते थे, मम्मा बोलती थी देखो ऐसे होता है वैसे होता है, एंड वी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स. अभी ऐसा हो गया है फॉर पेशेंट्स, ओके वी आर प्रोफेशनल एंड वी वोंट टेल देम एनीथिंग. अभी उतना कंट्रोल है हम में कि अपना मूड खराब है तो भी उनको कुछ नहीं बोलना, लेकिन वो पूरा बर्स्ट आउट अंदर रह के. द प्रॉब्लम इज आई टेल यू, वी रियलाइज इट कि कॉन्फ्लिक्ट हम सॉल्व नहीं कर रहे, हम वो कॉन्फ्लिक्ट घर तक लेके सप्रेस कर रहे हैं. या लेके जा रहे एंड इट्स लाइक वी स्टे विद फ्रेंड्स, हॉस्टल में रहते हैं. दैट्स अनदर स्ट्रेस कि मम्मा नहीं है. इट्स नॉट दैट मम्मा जरूर 2 साल के बाद आपको पता कौन होगा घर पे. हाँ, तो फिर अब हम बड़े हो गए ना, है ना, तो वो हम जब बड़े हो गए, लेकिन कंट्रोल इसमें आ गया कि दूसरों को नहीं बोलना, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म में हमें हर्ट नहीं करना. बट ये नहीं सीख रहा कि खुद का कैसे ध्यान रखें. हम पेशेंट को फोर्स करके बोलते नहीं आपको खाना है, आपको अच्छा होना है, लेकिन जब खुद का आता है तो शाम को लगता है छोड़ यार मैं इसका खाना अच्छा नहीं, सो जाता है. ऐसे लगता है. जब हम अपना ध्यान नहीं रखते तो उस बात पे ताली नहीं बजाते. हाँ, हम खाना नहीं खाते तो उस बात पे हम ताली बजाएंगे. इनफैक्ट हम आज सुनकर ये डिसाइड करेंगे कि चाहे कितने भी थके हुए हो, सी वी हैव दिस संस्कार ऑफ केयरिंग फॉर अदर पीपल बट नॉट केयरिंग फॉर आवरसेल्फ, है ना. तो जब तक हम उस एज में होते हैं जब हमारे घर पे कोई हमारे पे डिपेंडेंट नहीं है तो हम अपना ध्यान नहीं रखते. अगर हमें ये समझ में आ जाए कि औरों का ध्यान रखने के लिए मुझे किसका ध्यान रखना पड़ेगा. I cannot take care of other people without taking care of myself. I myself have realized this very late. It needs to be realized very early in life. We think it's very selfish to take care of ourselves. सारा ध्यान हमें किसका रखना है, औरों का रखना है. लेकिन वो करते थोड़ा टाइम चल जाता है, एंड स्पेशली जब हम इस एज ग्रुप में होते हैं जब शरीर ले लेता है. आप खाना नहीं खाओ, शरीर अडेप्ट कर लेगा. आज आप ठीक से सो नहीं, शरीर अडेप्ट कर लेगा, बिकॉज शरीर के अंदर बहुत पावर है अडेप्ट करने के लिए. लेकिन 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अगर वो करते करते हमारा जीवन जीने का तरीका बन गया तो जैसे ही आप 30 क्रॉस करते हैं फिर ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है. नौकरी तो छोड़ेंगे नहीं, नौकरी तो छोड़ेंगे नहीं, अब वो दर्द में जाना पड़ेगा रोज काम पर. So I am writing my own destiny today. I am writing my destiny. Just because the body is not saying anything today, don't think it will not say anything ever. It will start saying after some time. But we think कि अभी चलता है हम तब ध्यान रख लेंगे. अब का रखा हुआ ध्यान या अब की हुई निग्लेक्ट ही बाद में आंसर देती है हमें. करते हैं या नहीं करते हैं. तो हमें अगर अपने आप को कोई नहीं है हमें समझाने के लिए, तो किसको हमें समझाना पड़ेगा. हमें खुद अपने आप को समझाना पड़ेगा. एक हीलर खुद बीमार हो जाएगा तो फिर. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हम सोचते हैं कि हम औरों को कुछ नहीं बोलते लेकिन अंदर दबा हुआ है, तो एक वो दबा हुआ भी वाइब्रेशन तो दूसरे तक पहुंचेगा ही, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट वो दबा हुआ मेरा नुकसान कितना कर रहा है. नाउ वी आर नॉट एट दैट एज के पेरेंट्स हमारा ध्यान रखेंगे. नाउ वी आर नॉट इवन एट दैट एज के टीचर्स हमारा ध्यान रखेंगे. नाउ वी आर एट दैट एज जब हमें दूसरों का ध्यान रखना होगा. तो फिर दूसरों का ध्यान रखते रखते सबसे पहले किसका ध्यान रखना होगा. आप में से कौन कौन खाना स्किप करता है. उठा लो हाथ, उठाओ हाथ उठाओ. थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस अप. क्या हम आज से ये अपने असाइनमेंट का हिस्सा बना सकते हैं कि हमने 3 टाइम खाना खाना है.
Can that be done? Please do not exploit yourself. This is exploitation. दुनिया में लोग कहते हैं people exploit women. I say women exploit them own selves. Who else will exploit us? कोई हमें नहीं एक्सप्लॉइट कर सकता, हम खुद ही अपना करते हैं, क्योंकि हम खुद ही अपना ध्यान नहीं रखते, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे हमारा ध्यान रखें। हमारे अंदर पावर है ना ध्यान रखने की, हमारे अंदर है ना वो क्वालिटी ध्यान रखने की, तो हम ये क्यों वेट कर रहे हैं कि दूसरे हमारा आके ध्यान रखें। एक चीज अंडरलाइन कर लेना, किसी ने आपका ध्यान नहीं रखना। 4 साल बाद आप कहने वाले हैं मेरे हस्बैंड मुझे पूछता ही नहीं, खाना खा के चला गया, मुझे बोला ही नहीं खाने के लिए। वो नहीं बोलने वाले हैं। हो सकता है कोई बोले, कोई नहीं भी बोले। कोई फिर बोलेगा मेरी सास ने बोला ही नहीं, देखा उसने मैंने नहीं खाना खाया तो भी उसने मुझे बोला ही नहीं, अब नहीं खाती मैं खाना, तो मत खाओ। वो कुछ नहीं बोलने वाली है। We will have to learn to take care of ourselves. Can we make a promise today to ourselves that I will never skip a meal? मैम बट टेस्ट अच्छा नहीं है। मैम यू वॉन्ट बिलीव, महीने के 2000 अलग से रखते फॉर ऑर्डरिंग प्लस मेस का फीस। मॉम डैड पूछते क्या कर रहे हो। आप खर्चा कैसे भी करो, मील स्किप नहीं करना है। एंड द बेस्ट चीज है, कुछ भी नहीं है तो फ्रूट खाना है, दूध पीना है, लेकिन मील स्किप नहीं करना है, राइट? फ्रूट तो टेस्टी होता है और एनर्जाइजिंग होता है, सात्विक है, नेचुरोपैथी है हाईएस्ट। फ्रूट खाओ, सैलेड खाओ, कच्ची सब्जी खरीदो खाओ। मेस का नहीं पसंद आ रहा, नहीं खाओ। गाजर की सब्जी बनी हुई नहीं अच्छी लगती तो गाजर ही खा जाओ, ऐसे ही 3-4 क्यों नहीं खा सकते? सब चीजों के ऑप्शन है। जीवन में ब्लेम करके चलेंगे तो ब्लेम करने की कोई लिमिट ही नहीं है, और अगर उस परिस्थिति में सोल्यूशन ढूंढेंगे तो हर सिचुएशन में एक सोल्यूशन है। क्योंकि नुकसान किसका हो रहा है? अगर आप मेस का बोलेंगे खाना अच्छा नहीं, अब नहीं खाते, मेस वाला कहेगा नहीं खाओ, मेरा तो फायदा ही है उसमें, मत खाओ। दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। द वर्ल्ड विल नॉट चेंज, पीपल विल नॉट चेंज। They are doing what they feel is right. क्या आज हम ये प्रॉमिस कर सकते हैं अपने आप से कि हम खाना स्किप नहीं करेंगे? किस किस के अंदर ताकत है गारंटी लेने की अपनी? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एग्जाम है, even this is a sanskar. To learn to take care of yourself is a sanskar. To learn to take care of yourself is a sanskar. The earlier you develop it, the better you will be able to take care of the people in your life. होगा या नहीं होगा? And most important, जो आपने कहा मन में सप्रेस नहीं करे, उसी के लिए आकर आप मेडिटेशन सीखें। And one more question. मैम सिंपल लाइक सब करने का नहीं, स्टार्टिंग जब आया कुछ बोला तो आप मुझे एक एग्जांपल दो जब किसी ने आपको हर्ट किया। कुछ नहीं, कल प्रिंसिपल ने डांटा। क्या किया? प्रिंसिपल ने डांट दिया। प्रिंसिपल ने डांट दिया ना? हाँ, और तो फिर बोला 10 मिनट बाद मेरी फ्रेंड को कि उसको बोलना मन पे मत ले। हाउ स्वीट, कितना अच्छा। आप तो बहुत फॉर्चुनेट थे, आपके पास ऐसे इतने अच्छे प्रिंसिपल है। हाँ, अच्छे प्रिंसिपल है ना, ये तो बहुत केयरिंग प्रिंसिपल। मैम पर तभी तो लग गया ना बुरा, रो पड़ी। फिर क्या मैम, तो क्या करने का? तभी हमें सी वन थिंग इज 100%, कुछ भी उस टाइम नहीं करना होता है। हमें क्या लगता है बात आई, हम उस टाइम क्या करें? आपका पेशेंट अगर आपको पूछे कि बीमारी आई, उस टाइम क्या करें, तो आप क्या कहेंगे? उस टाइम कुछ किया जा सकता है? नहीं। ध्यान कब रखना पड़ता है? ध्यान कब रखना पड़ता है? डेली। यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे हम क्यों जाते हैं रोज? हम डेली मेडिटेशन करते हैं। वो है तरीका अपना रोज ध्यान रखने का और अपने आप को धीरे धीरे कैसे बनाने का? पावरफुल बनाने का, ताकि बात आई हम बीमार नहीं पड़े। किसी ने कुछ कहा लेकिन रोना नहीं आया, मन पर वो असर उतना
नहीं पढ़ा, हम उनके नजरिए को समझ पाए कि उन्होंने क्यों कहा। एक, या तो मेरे से कोई गलती हुई इसलिए कहा, दूसरा वो खुद भी कितने परेशान रहते हैं इसीलिए गुस्से में कह दिया, तीसरा हाउ स्वीट, उसके बाद इतना अच्छा मेरे लिए मैसेज भी भेजते हैं। लेकिन वो सब सोचने के लिए मन कैसा होना चाहिए? लेकिन अगर मन सिर्फ नेगेटिव सोचता है तो मन कहता है मुझे ऐसा बोल दिया, हर बार मुझे ही ऐसा बोलते हैं, कैसे सर है, कितना भी काम कर लो तो भी ऐसा ही बोलते हैं। तो उन्होंने तो एक लाइन बोली होती है, हम अपने आप को कितनी लाइन बोलते हैं उसके बाद। दूसरे हमें उतना नहीं डांटते जितना हम खुद अपने आप को डांटते हैं, बोल बोल के अपने आप को। तो उसकी प्रैक्टिस उस टाइम नहीं कर सकते जब बात आएगी। हेल्दी तब, एक्सरसाइज तब नहीं कर सकते जब बीमार पड़े, लेकिन एक्सरसाइज डेली करेंगे तो बीमार पड़ने के चांसेस कम है। अगर आप सारा दिन में 15 मिनट का भी टाइम निकाल सकते हो तो सेंटर पे आओ और सीख लो सिर्फ मेडिटेशन, और फिर उसको रोज करना शुरू कर दो। अभी से किया हुआ इट विल मेक यू वेरी प्रोटेक्टेड एंड पावरफुल बिफोर यू गेट इनटू द जॉब, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इट विल बिकम योर वे ऑफ लिविंग। तो एक और होमवर्क ऐड हो गया। अब क्या होमवर्क ऐड हो गया? होमवर्क कौन सा ऐड हो गया अभी उनके क्वेश्चन से? हमने एक भी मील स्किप नहीं करना, एंड आई हैव टू लर्न टू टेक केयर ऑफ myself. Taking care of myself is not selfish. फाउंडेशन पे ध्यान रखना सेल्फिश होता है? फाउंडेशन पे ध्यान रखना सेल्फिश होता है? आप देखो जब एक घर बनाते हैं तो आधे से ज्यादा टाइम सिर्फ फाउंडेशन बनाते हैं उसके, फिर उसके बाद मकान फटाफट बन जाता है। तो सेल्फिश कहेंगे कि आधा टाइम तो फाउंडेशन बनाने में लग गया, ऊपर का मेन मकान तो इतने थोड़ी देर में बन गया। मकान ऊपर से सुंदर नहीं चाहिए, अगर फाउंडेशन कमजोर होगी, एक कुछ आएगा तूफान, पूरा का पूरा ढह जाएगा मकान। तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, ठीक है? तो आज से हमें अपना ध्यान, प्रॉमिस टू योरसेल्फ, नो वन विल टेक केयर ऑफ मी and I am not going to wait for people to take care of me. I will take care of myself. अगर लोग हमारा ध्यान न रख के गलत कर रहे हैं तो हम अपना ध्यान न रख के क्या कर रहे हैं? कोई मुझसे प्यार से नहीं बात करता तो वो गलत कर रहा है, और मैं अपने आप से प्यार से नहीं बात करती तो मैं क्या कर रहा हूँ? तो दूसरों को तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। हम क्या करते हैं? हम दूसरों को जाते हैं, प्लीज मेरे से प्यार से बात करो ना, प्लीज मुझसे अच्छे से बात करो ना। उतनी देर में खुद अपने से कैसे बात की? सो वट एवर वी वॉन्ट फ्रॉम अदर पीपल, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट फॉर आवरसेल्फ। सो पक्का होमवर्क, खाना कभी भी हम स्किप नहीं करेंगे, एंड अच्छा हाई एनर्जी सात्विक खाना खाएंगे। सात्विक अन्न होगा तो मन भी फिर सात्विक होगा। जंक फाउंडेशन में डालते जाएंगे अगर सिर्फ, हमें टेस्टी फाउंडेशन नहीं चाहिए, पावरफुल फाउंडेशन चाहिए। टू रिमेंबर दिस, पावरफुल फाउंडेशन चाहिए। आज के समय पर पूरी जीवन आपकी खड़ी होने वाली है बिल्डिंग, तो प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए। तो हमें अपने अंदर सात्विक भोजन अगर डालेंगे, कोई भी चीज जो हमें पहले से ही पता है कि मेरे लिए हानिकारक है, क्यों डालना अपने अंदर? ठीक है, पक्का? सो वी से थैंक यू टू हर। ऐसे दुआएं मिलती हैं। दुआएं मिली ना उनके क्वेश्चंस की वजह से, मिली या नहीं मिली? देखो, शेयरिंग में हमेशा दुआएं मिलती हैं। ओके जी, एनी वन मोर क्वेश्चन लास्ट? यस सिस्टर। Morning, ma'am. Nothing here. Monica from IMC Ashwini. My question is, sometimes patients do get dependent to a very loving nurse. So my question is, is the nurse sometimes responsible for this? And if it does, and if she does, then what is the solution to this problem? Where do we set the limit and how? I don't know dependent would be in what context, but it would be, you should know that you are playing your role with full honesty and sincerity, right? If the other person has a sanskar of becoming dependent, that will be 1 in 10 people will be like that.
सारे पेशेंट्स नहीं होंगे, ठीक है ना। वो किस पर भी डिपेंड करता है, उस पेशेंट के संस्कार पे भी डिपेंडेंट होता है। कुछ लोगों के अंदर संस्कार होता है कि वो जल्दी से किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा हो उसकी वजह से हम बाकी सबसे भी रूखे रूखे रहें, तो ये तो किसका नुकसान हो जाएगा, है ना। सो वी हैव टू सी, वी आर नॉट गेटिंग वेरी इंटैंगल्ड विद एवरीवन कि खड़े हैं बातें कर रहे हैं बहुत कुछ है, वी आर नॉट गोइंग टू डू ऑल दैट। लेकिन जो हमारा रोल है कि 5 मिनट भी अगर हम किसी के रूम में हैं किसी के साथ, तो हमारी पूरी एनर्जी कैसी होनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारे अंदर से तो कोई अटैचमेंट नहीं है ना, फिर कुछ नहीं हो सकता। देन इट्स परफेक्टली ओके एंड यू आर सेफ, ओके। बट डोंट कीप योरसेल्फ रूखा रूखा बिकॉज ऑफ दैट विद एवरीबडी एल्स। ओके जी, ओके। हाँ जी, लास्ट। कैन यू से इट विदाउट द माइक? से इट, ऑफ कोर्स। आपने जैसे बोला, मतलब एज अ हीलर आप बोल रहे हैं कि एवरीथिंग वी शुड कीप टू आवरसेल्फ ओनली ना, वी कांट शेयर एवरीथिंग टू एवरीवन, राइट। तो I will ask for myself only, as in I am capable of कि अगर कोई रिएक्ट कर रहा है या कोई गुस्सा है या कोई कुछ भी बोल रहा है ना, एट अ टाइम मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ, आई बी पॉजिटिव। बट घर जब मैं जाती हूँ ना, तो एट अ टाइम वो सारी चीजें दिमाग में आती है कि हाँ उस वक्त हम लोग ने रिएक्ट नहीं किया कि आई डोंट वांट टू हर्ट जो सामने वाला बोल रहा है। बट आफ्टर गोइंग टू होम वो सारी चीजें आती है दिमाग में कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोला। और ऐसा जब होता है मन में, वी कांट इवन मेडिटेट, राइट। वो अगर आंख भी बंद करेंगे तो वही सब दिमाग में आएगा। सो आई जस्ट वांट टू आस्क द सोल्यूशन फॉर इट कि हम लोग दूसरे को सिक्योर करने को, दूसरे को हर्ट नहीं हो इसलिए हम लोग रिएक्ट नहीं करते, बट आफ्टरवर्ड वो हम लोग को ही हर्ट होता है। सो आई जस्ट वांट टू आस्क द सोल्यूशन। वी सिट एंड थिंक लाइक दैट। हमें दूसरे के नजरिए को समझ के अपने आप को आंसर देना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा किया, इसके पीछे उनका क्या नजरिया था, क्या पर्सपेक्टिव था, क्यों कहा उन्होंने, उसको व्यक्ति को समझने की कोशिश। एंड फिर बियॉन्ड दैट, ठीक है, उनको जो लगा उन्होंने कहा, मैंने ऊपर से रिएक्ट नहीं किया, मैंने आधा झगड़ा कम कर दिया। अगर आपने ऊपर से बोल दिया होता तो फिर भी तो सामने वाला चुप थोड़ी रहेगा उसके बाद। सो द कॉन्फ्लिक्ट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, वो कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर हमने उधर नहीं बोला, हम घर जाके अपने आप से बात करें, सिर्फ चिंता नहीं करें। हर्ट होना मीन्स क्यों बोला, क्यों बोला, क्यों बोला। सोल्यूशन मीन्स क्यों बोला, आंसर देना है अपने आप को। क्योंकि वो हर्ट थे, वो नाराज थे, वो जेलस थे, वो परेशान थे, या वो उनका ओपिनियन था इसलिए उन्होंने बोला। एंड नाउ आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो जितना हम मेडिटेशन डजंट मीन आंख बंद करना, मेडिटेशन मीन्स हम सेंटर पर जाकर ज्ञान लेते हैं रोज कि मन की थॉट्स कैसे चलती हैं, कैसे सोचना है, कैसे दूसरे को समझना है। तो ज्ञान और मेडिटेशन दोनों सेंटर पे मिलता है। ये रोज का ज्ञान है। जैसे कोई आपसे कहे कि ये बीमार है, तो आपको पता है ना कौन सी दवाई देनी है, मुझे तो नहीं पता। क्यों आपको पता है? क्यों आपको पता है? क्योंकि आपने 4 साल इन्वेस्ट करके वो ज्ञान लिया, राइट? लेकिन मन जब ऐसा हो तो उसको कैसे वर्क करता है, उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके ज्ञान लेना पड़ता है। तो जितना थोड़ा सा अभी हमने किया आज के दिन में, अगर हम उसको रोज कंटिन्यू रखेंगे, थोड़ा थोड़ा रोज लेंगे, तो धीरे धीरे हमारा अपना मन कैसा चलता है और दूसरे का मन कैसे चलता है सब समझ में आ जाएगा। जैसे आपको हर बीमारी, हर दवाई बाय हार्ट पता है, और तो किसी को भी नहीं पता दुनिया में, लेकिन आपको पता है क्योंकि आपके पास वो ज्ञान है। लेकिन ज्ञान नहीं होगा तो मुझे बुखार भी हो जाए तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या लेना है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो सेंटर पर आकर आधा घंटा भी अगर रोज निकाले ना, तो ज्ञान भी लें, मेडिटेशन भी करें, तो सबके मन के साथ चलना भी इजी हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बोलो जी। लेकिन मेरे केस में यू आर सेइंग ना कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सोचने से, अगर आधा घंटा भी हम लोग सोचेंगे उस बारे में तो आधा घंटा उस बारे में नहीं सोचना है। बट मतलब when I talk to myself only, वो हर टाइम वो नेगेटिव वे में ही जाता है। क्योंकि हमने इसीलिए हमने कहा क्यों हम सेंटर पे जा रहे हैं,
कि रोज पॉजिटिव ज्ञान लें. जब तक पॉजिटिव अंदर नहीं डलेगा, थिंकिंग पॉजिटिव नहीं बनेगी. अपने आप नहीं हो जाएगा, उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है फिर. ओके जी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. ओम शांति.